वेलकम वैभव, आपका हमारे पॉडकास्ट में। ये हमारा सेकंड एपिसोड है और हम आज शूट कर रहे हैं आपके साथ। आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर दोगे ऑडियंस को कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप क्या हो अभी, कौन सी पोजीशन पे काम कर रहे हो, एंड फील फ्री टू टेल वट एवर यू वॉन्ट अबाउट यू so that we will start from there. Thank you. Thanks a lot, Siddharth, for having me here. I am born and raised in Delhi. As of now, I am functioning as a principal architect with PeopleStrong Technology. I work for multiple firms. Overall, I've got more than 12 years of experience, and I enjoy what I'm doing right now. That's great. That's great. Can you tell us which all firms you have worked in? So I'll start like from my present to where I've started actually. So currently as I said, I'm working with PeopleStrong. Earlier with PeopleStrong, I was working with PayPal. And I work with Airtel as well. I have worked with Virtusa. I had my own startup as well for a while, and I started my career with Adda52.com. Okay. So probably one or EY as well. So I mean, it's more or less like 7 to 8 firms that I have actually great. switched in. So which one did you like the best? Okay, Well, you actually do not have to answer that, but Since you have already asked, so I would certainly answer. Preferably, it's not about I'm not going to say like which one is best out of it, but what I could define is a place where you preferably would like to be at a place is something that where you have good people and good culture. So culture is driven by the organization, and organization is made up of people. yeah. So Well said. yeah. So I mean, where I am right now, I would say that it's I mean, preferably I would like to be here. Great. So वैभव, जैसे कि हमने देखा कि you have worked in so many firms, but एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा वो ये है कि what inspires you to be a techie, a tech guy? Problem solver. So basically people like us, जैसे आपको पता है मतलब सब लोगों का ना अपना एक टाइप होता है, INTP, INTF, है ना? थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे इसको? Sure. So basically, there is a personality type. So everybody has a personality type. So I am not able to recall all those personality type, but there is a test that everybody can give. So people like us, we have a very different sort of a thinking. As in, like like we are someone to whom you would everything that if both of us, if we are talking and if you are going to throw some sort of a problem, maybe if I don't want to solve it, but it's like a natural thing. Like it's an innate thing that I would certainly like to give it a thought. And like come up with something कि अच्छा चलो ठीक है इसको ऐसे कर लेते हैं. So इसलिए मुझे लगता है कि मतलब I was not something like I'm not going to say that I have landed at a place in a planned way. I mean I would say that I have become an accidental engineer, but it's not something like that I had a planned way of becoming an engineer. Okay. But I would say that I've been lucky enough that wherever I am right now or whatever I am doing in my career, it's something that I believe that I belong to this thing. Okay. So when you say you became an accidental engineer, क्या मतलब है उस चीज़ का? इसका मतलब ये है कि मैंने अपनी स्कूलिंग में PCMB लिया था. लोग जनरली या तो PCMB मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स. ओके. सो मतलब ये काफ़ी ख़राब कॉम्बिनेशन है. जनरली लोग मतलब भागते हैं कि या तो मतलब 4 में से कोई 3 ही ले रहे होते हैं. बट मैंने चारों इसलिए लिए थे क्योंकि मुझे लगता था कि मैं चारों दे दूंगा. मतलब एज इन मतलब ये निकाल के मैं PMT का एग्जाम भी दे दूंगा, इंजीनियरिंग का भी दे दूंगा. बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग उस समय आई हैड नो क्लू कि मुझे करना क्या है. मतलब आई हैड स्कोर्ड वेल इन माई 10th स्टैंडर्ड एंड आई हैड like preferably I had chosen non-medical. So my parents were called at the school and they were asked कि क्या बनाना है आपको बच्चे को. So they had no clue about it. Okay. So the principal of my school, like she suggested like why don't you offer PCMB, as in like you will have all the do options. everything. yeah. So if you haven't planned anything right now, then by the time like these 2 years will be enough
to think about what exactly do you want to do in your career. Probably you might be able to give it a thought and then try. So have all the options in your hand. So I chose PCMB. But anyway, I am not going to suggest anyone to take that, because that takes a, I mean, I wouldn't say that was a horrendous decision. But yeah, I mean, I would certainly say that by the end of my 11th and 12th, my guts were out. Okay. So let's talk about something you are doing right now. I think you did not introduce yourself as a principal engineer yet, have you? Not yet. So मेरे ख्याल से आपको बताना चाहिए ऑडियंस को कि what you are working as right now, and then what were your unique challenges यहाँ तक पहुँचने के लिए. But उस पर हम आएंगे, पर पहले let's start with what you are right now and where actually. So as I said, I'm working with PeopleStrong. So हर कंपनी के मल्टीपल वर्टिकल्स होते हैं. अभी एक वर्टिकल के अक्रॉस जितने प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए डे इन डे आउट जो भी आर्किटेक्चरल डिसीजंस हैं या कोई डिज़ाइन चेंजेस हैं या फंडामेंटल चेंजेस हैं, इनफैक्ट परफॉर्मेंस रिलेटेड चीज़ें हैं, उसके लिए मैं आई एम सर्विसेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन. कंपनी में और भी बहुत सारे लोग हैं, SD1 से लेके SD2, 3 और हायरार्की काफ़ी ऊपर तक है. बट प्रेफरेबली मैं या मेरे जैसे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन तब रीच आउट करती है जब कुछ ऐसा चेंज करना हो that is going to make a very drastic change, as in like even if we are making a change in a parameter or in some sort of a configuration जिससे कि पूरी सॉफ्टवेयर की मतलब क्या बोले बेसिस बदल जाए, या आप ये मान लो कि उसकी रीचेबिलिटी बदल जाए, उन चीज़ों के डिसीजन मेकिंग के लिए मेरे जैसे लोगों को रीच आउट किया जाता है. ओके. सो एक चीज़ जो मैं इसमें पूछना चाहूँगा वैभव, वो ये है कि हमने लास्ट पॉडकास्ट जो किया था वो एक इंजीनियरिंग मैनेजर के साथ किया था. ठीक है, आप उसके डिफरेंट वर्टिकल में हो. ठीक है, यू आर अ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर, द पार्ट विच वी ऑल्सो मेंशन्ड इन द लास्ट पॉडकास्ट. सो व्हाट इज द डिफरेंस एंड वेयर आर द पाथ्स जहाँ से वो, वेयर इज द पॉइंट जहाँ से पाथ्स अलग हो जाते हैं कि what becomes a principal engineer वाला path and what becomes a manager? Good question. So पहले मैं बता देता हूँ कि मतलब दोनों के बीच में आखिर एक फिनोमिनल डिफरेंस क्या है, मतलब जिसमें आप एकदम क्लियरली डिफाइन कर सको. सो बेसिकली इंजीनियरिंग मैनेजर वो है जिसमें आपको सिर्फ अपने से काम नहीं करना है. बेसिकली you have to let, so if everybody is winning then you are winning, is someone who's actually an engineering manager. पर प्रिंसिपल आर्किटेक्ट का रोल या प्रिंसिपल इंजीनियर का रोल वो होता है कि आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी जाती है एंड यू वुड बी एक्सपेक्टेड दैट समहाउ यू विल बी सॉल्विंग इट, एंड इट्स एज यू सेड इन द बिगिनिंग इटसेल्फ कि ये एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर का रोल है. तो उस समय आपको ये खुद सोच के चलना है कि वो ऐसे क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, और आप समझो कि मतलब बीइंग एन इंजीनियरिंग मैनेजर इट्स नॉट दैट ईजी एज आई सेड, क्योंकि आपको 10 लोगों की 10 अलग फ्रीक्वेंसी को मैच करके आपको वो चीज़ डिलीवर करनी है, राइट. मगर अगर मेरे जैसा एक IC है तो मैं अपने टर्म्स पे काम कर रहा हूँ. मतलब मुझे मेरे टर्म्स पे काम करने का मेरा मतलब ये है कि टाइमलाइंस मेरे पास भी हैं, बट वो चीज़ें मुझे अपने हिसाब से मैनेज करनी है. एज इन मेरा मैनेजर मैं खुद हूँ. आप समझ रहे हो, आपने मुझे एक प्रॉब्लम दे दी है सॉल्व करने के लिए, अब उसको मुझे मीट करना है. अब मीट करने के लिए ऐसा नहीं है कि मैं आई विल कम अक्रॉस विद ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस, एज इन लाइक देयर विल बी अ बेस्ट वन, देयर विल बी अ वर्स्ट वन एंड देयर इज अ गुड वन बेस्ड ऑन योर सर्कमस्टांसेस, एज इन financial fitment or program fitment, functional fitment. Based on that you will take a call. So being, as I said, like being a principal architect or an engineer, I will come across with multiple options. So for exploring or thinking about all those options, I will have to, like it's like a strategic thinking or a discursive thinking that you have to think through, as in with all possible options. While doing this, you also inculcate a lot of occupational hazard as well. Yeah. Because you get into a thought of, you like whenever you are thinking, then over a period of time, if you continue start doing this, then you get into a habit that everything looks doubtful to you. अच्छा ऐसा नहीं तो और ऐसे even in the personal life. Exactly.
तो और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं इससे भी इम्पैक्ट कर रही होती है। तो एनीवे, कमिंग बैक टू इंजीनियरिंग मैनेजर, सो इंजीनियरिंग मैनेजर एज आई सेड, मैं अपने लिए आंसरेबल हूँ, मैं अपना मैनेजर खुद हूँ, मगर वहाँ पर उस व्यक्ति को जो भी वो रोल प्ले कर रहा है उसको ना सिर्फ 10 लोगों से बात करके काम कराना भी है, बल्कि वो उन 10 लोगों का चेहरा भी है, उनको उनके द्वारा किया गया काम उसको आगे रिप्रेजेंट भी करना है, कैसे डिलीवर करना है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ प्लानिंग इन्वॉल्व. So planning is involved in our role as well, but like in order to plan and deliver, and it's like a choreography that you are trying to run, as in, right, you have 10 different people and somehow you have to make them understand on which beat that you have to take which step. So Vaibhav, coming a bit before that, आपके करियर से पहले, let's talk about something in college. ठीक है, कैसा था कॉलेज आपका वैभव? कॉलेज लाइफ हमारी बहुत ही मतलब मेरे पूरे ग्रुप की ऐसे थी कि आई हैड मल्टीपल ग्रुप्स, एज इन आई वुडंट से लाइक, सो जनरली पीपल हैव वन ग्रुप, आई हैड अ बंच ऑफ ग्रुप्स. ओके. सो एंड हाउ इट वाज, बेसिकली आई वाज अ फर्स्ट बेंचर, but I had friends, I had a separate group with backbenchers, I had a separate group people who, so as in मेरे जितने दोस्त थे, I would say that they are very well settled आज की डेट में. Okay. चाहे वो कोई बैक बेंचर रहा हो, चाहे कोई या कोई फ्रंट बेंचर रहा हो, इससे कुछ खास, मतलब जो मुझे समझ में आया कि जो हम लोगों ने एक जो स्टीरियोटाइप बना रखा है ना कि मतलब जो बहुत अच्छा स्कोर करता है वो बहुत कुछ कर लेता है, और जो बहुत ख़राब स्कोर करता है वो कुछ नहीं कर पाता है. So I think it's a very I would say pathetically presented or projected to this generation, or made be anywhere. Reason behind, क्योंकि during your graduation what I have seen is कि what you are made to learn is like how to deal with the problems or the situations. That is what I believe that I was. So इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया है कि जो हमें कॉलेज में पढ़ाया जाता है, वो जो भी हम कंपनी में काम कर रहे होते हैं वो उसका शायद 5 या 10% ही काम आ रहा होता है, या मोस्ट लाइकली उसकी रीचेबिलिटी सिर्फ उतनी है कि आप अपना इंटरव्यू क्रैक कर लो. उसके अलावा जो आपको जो ऑफिस में जो काम करना है, जिसके थ्रू आप अपनी पूरी लाइफ जिसके भरोसे काटोगे, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट सेट ऑफ नॉलेज है, जो अगर आपने इंकलकेट अपने में कर ली या आपने कहीं से कोलेट कर ली तो बहुत बढ़िया है. अदरवाइज यू विल बी एन एवरेज. Like that is something like I haven't answered your last question where you asked which is the point where you decide to be an engineering manager or a principal engineer or a principal architect. Reason is like when you are more curious to know about how exactly that thing is being done. So let's say like, if you ask me to go from point A to point B, and if without even asking, or even asking like few questions, okay, why are we going this? Or like why are we going over there, and what's the point of like how exactly we are going to reach over there. If I am going to ask you these simple questions, then probably that I would still consider that okay, I can be that guy who can manage people, because I am able to like questions on the existence of doing something, but when I am someone, okay, I have understood why you are trying to do. Now I'll try to come up with another way of doing that same thing, and even questioning the thought that why exactly you are trying to do that, because I am actually trying to know what is the ROI of doing that whole activity. If you are going to point B, then what exactly you are going to make out of it. That is something like that. It's a very different thought. So when you see that, like when you are more curious to get into the fundamentals, when the people who are more into, like they want to know the roots of everything, I guess that is the person who would preferably be someone like, what designation do I hold today? Otherwise, better, like what exactly we are trying to discuss. Yes. Great. So, coming back to college. Yeah, sorry, we just digress. It's अच्छी बात है, क्योंकि it means कि we actually want to convey something, and we are like open about it, and we want to convey it, so it's fine, right?
So, coming back to your college, right? कौन सा कॉलेज था पहले तो, और how did you get into that college? ठीक है, were you a topper or something in your school life, or and the college that you studied in, which stream did you study in, है ना? And what about your friends? How were your friends? So I gave CET, Common Entrance Test. उस समय मतलब अलग अलग तरीके के सबके अलग अलग एग्ज़ाम हुआ करते थे। तब उस समय DCE का पेपर हुआ करता था, आपको IIT का पेपर अलग से देना होता था, DCE का अलग से देना पड़ता था, IB यूनिवर्सिटी का अलग से देना पड़ता था, AICTE का अलग, AIEEE का अलग से देना पड़ता था। तो मैंने ये सारे एग्ज़ाम दिए थे, मगर प्रेफरेबली मैंने IIT नहीं दिया था खुद से जानबूझ के। विल कम अप टू दैट कि मैंने वो क्यों नहीं दिया था। तो आई वॉज़न्ट अ वेरी गुड स्टूडेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई वॉज अ एवरेज गाय, मतलब क्योंकि मेरा पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं था। मुझे कुछ ऐसा करना था जिसमें दिमाग लगे, मगर किताबी नॉलेज नहीं चाहिए थी मुझे। मतलब आई वॉज नॉट दैट गुड विद बुक्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता था। क्योंकि बुक्स में ये था I was the same. हाँ, क्योंकि वो है कि आपने मतलब वो तो थ्योरेटिकल है। मुझे चाहिए था कि मुझे कहीं से कोई प्रैक्टिकल लर्निंग हो, जिसके अंदर समझ रहे हो आप रियल टाइम सिचुएशन जहाँ पैदा हो जाए, जिसको मुझे वो ठीक करना पड़ जाए। तो वो वाली चीज़ थी। तो स्कूल लाइफ में हाउ डिड यू स्कोर, हाउ मच? आई गेस टिल 6th or 7th, सो देयर वाज अ पॉइंट 6th or 7th तक तो आई वाज लाइक 50%, 60%, इससे ज़्यादा कभी नहीं हुए। Okay. फिर उसके बाद 8th में यू नो लाइक इट वाज एन एनलाइटमेंट दैट आई सडनली गॉट। सो आई वेंट ऑन अ ट्रिप विद माय पेरेंट्स फॉर अ 12-day लॉन्ग ट्रिप, and it was a religious trip, to be very honest. I don't know, like somehow I just realized that whatever I am doing as of now, or the situations or the hardship my family is going through at that time, probably I could be the one who can actually help them to have a better future. So I thought, like, why not to start from here? Because if I'm not going to start, it's not something that can be done in a day or a two. You know, it's a journey that one has to take through. जैसे वो 3 Idiots वाला वो था ना, I don't remember the guy, जिसको लग रहा था कि सारे पूरे परिवार का भार इसी कंधों पे है। Although my parents had never conveyed this, but you know, like being a kid, you make things in your mind. So I thought, like, ठीक है, पढ़ाई शुरू कर लेते हैं। तो 8th standard में आए, still like 70s, 80s, इससे ज़्यादा मेरे कभी मार्क्स आए नहीं, मतलब to be very honest, till 12th as well. But हाँ, मतलब post 8th I was able to score well, मतलब from 8th onwards. Then you started understanding things. Yeah, exactly. So you know, like that was, I would say that that was the point from where I started exploring my thoughts. You know, as in like the people or you know, like the kind of things that I was actually doing. So जैसे होता है ना कि किसी चीज़ को मोनोटोनस वे में, एक लाइफ को एक मोनोटोनस वे में जीना, तो आप उसी तरीके से कर रहे हो कि आप रोज स्कूल जा रहे हो, अपना होमवर्क कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, घर जा रहे हो, खेल रहे हो, सो जा रहे हो, है ना। मगर जब आपको लगता है कि अब मुझे अपने स्केड्यूल में चेंज लाना, देन यू हैव टू गेट इनटू रेट्रोस्पेक्शन एंड यू हैव टू थिंक थ्रू कि अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा, कि मैं ऐसा क्या ही बदल लूँ कि जिससे कि मुझे मज़ा आने लग जाए। आप समझ रहे हो मतलब। और ये हर किसी की लाइफ में आता है। ये मुझे लगता है हर किसी की लाइफ में आ रहा है, जिसकी लाइफ में नहीं आया वो आने वाला है। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि ये कभी ना कभी आएगा। मतलब कुछ लोगों को आ जाता है, बिल्कुल बचपन से ही आ जाता है। आपको 8th में हिट किया था, मुझे 12th के बाद हिट किया, मुझे कॉलेज में हिट किया था। तो एग्जैक्टली, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, आप मतलब प्रॉब्लम ऐसे समझो कि आपको ये चीज़ जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। और समझ में आने का रीज़न ये भी होता है, इट्स ऑल्सो अबाउट द फ्रेंड सर्कल। जैसे कि तुमने मुझसे पूछा कि अभी आपका फ्रेंड्स कैसे रहे, तो मेरा फ्रेंड सर्कल मैं कहूँगा कि प्रॉब्ली बाय जब मेरा 8th स्टैंडर्ड शुरू हुआ था तो कुछ क्लासेस मर्ज हुई थी जिसमें और बच्चे दूसरे सेक्शंस के आते हैं। तो यू नो लाइक काइंड ऑफ जो मेरे में भी कुछ चेंज था, मेरे आसपास के लोगों में भी कुछ चेंज आया, वो एनवायरनमेंट वैसा बिल्डअप हुआ जिससे मुझे लगता था कि अच्छा हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। बट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज लाइक वेन एवर यू वॉन्ट टू गेट इन टू दिस जर्नी, मे इट बी एट एनी पॉइंट of time. Sometimes people even post 30s as well, they have to get into this situation. The pivot happens. Exactly. So आपको ना एक बार के लिए ना एकदम आपको स्टैग्नेंट होना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा ऐसा मैंने क्या ही किया है अभी तक, या मैं उसमें ऐसा क्या बदल दूं कि जिससे कि मेरा पाथ ही बदल जाए। सो एनीवे, ऐसा होने के बाद फिर मैंने
वही करा जो मुझे लगना मुझे सही शुरू हुआ। एज एन मैंने अपनी बुक्स, अपनी पढ़ाई या बाकी सारी लाइफ का जो पर्सपेक्टिव था काफ़ी डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू करा। आई गेस दैट वाज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड thinking as in like everything has a you know like multiple perspective, as in you can perceive things from multiple ways. आप ये समझो कि किसी भी चीज़ को सोचने, समझने, करने के बहुत सारे तरीके हैं। हमारी इंडस्ट्री में एक कोड को आप एक बार लिखने के बाद इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो सेम टू सेम कोई लिख दे, दैट इज समथिंग या तो किसी ने रटा हुआ है या तो वो पॉसिबल नहीं है। आप उसको जब भी लिखोगे वो हर बार कुछ ना कुछ नया इम्प्रोवाइज वर्जन ही होगा। तो स्कूल होने के बाद मतलब जैसे कि मैंने बताया कि मैंने ऐसा कुछ सोचा तो था नहीं, तो मैंने मेडिकल के एग्जाम्स भी दिए थे, इंजीनियरिंग के भी दिए थे और सब क्लियर हो रहे थे। और मैंने IIT इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि बाय द टाइम 11th-12th मेरा कंप्लीट हुआ था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इतना प्रेशराइज्ड हो गया था कि मुझे लगने लग गया था कि आई थिंक वो प्रेशर मैं झेल नहीं पाऊंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे अपनी वर्क प्लेस में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, आपको मतलब आप यू वुड लाइक टू बी एट अ प्लेस और अराउंड विद द पीपल और बी इन टू अ सिचुएशन वेर यू बिलीव कि मैं प्रेशर आएगा मेरे पास, कब नहीं आता है ना। हमेशा ही होता है, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट मुझे लगता है कि मैं अब इसके बियॉन्ड मैं कर ही लूँगा। मतलब यू नो लाइक it's like a self push or self motivation that you try to give it yourself. You have to pat your back on your own. There is no one else. And you know like that could be a situation where you believe कि अच्छा हाँ मैं ये तो कर ही लूँगा, but you know like coming across पर वहाँ तक पहुँचने के लिए कि वो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आने के लिए यार ये तो मैं कर ही लूँगा, it takes a toll. I agree. It takes a toll. 100%. हाँ 100%. अब वो टोल क्या है, वो आप समझ रहे हो कि मतलब वन हैज़ टू थिंक थ्रू, एज आई सेड। मतलब आपको प्रॉबली आई हैव सीन पीपल हु आर यू नो लाइक इंट्रोवर्ट सॉर्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी, और अगर आपका चाइल्डहुड या आप कह लो कि अगर आप चाइल्डहुड कह लो या आपकी टीनेज जो है, अगर आपको उसमें लगता है ना कि मैं एकदम चुप रहूँ या मैं अपने में रह जाऊँ, सो यू आर नॉट एबल टू एक्सचेंज थॉट. As I said, I'm the sole child of my parents. Even today, I am someone who I consider myself someone who is actually introvert kind of a person. But now I know like with whom I should bond and with whom I shouldn't. But at that point of time, like you know, like initially I had no one around. I have no siblings, as I said. तो मेरे पास मेरे थॉट्स को शेयर करने के लिए कि क्या सही है या बुरा है, मेरे करियर के पर्सपेक्टिव में कोई था नहीं ना। मतलब ऐसा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा कुछ था नहीं कि जिसमें मुझे कोई सजेस्ट कर पाता। तो मेरे लिए तो ये था हिट एंड ट्राई था, या मेरे आसपास की जनता, मान लो मेरे दोस्त हैं या मेरे स्कूल के टीचर्स हैं, तो मतलब मुझे ये दिख रहा होता था कि मतलब सबके स्कूल में होता है, आई थिंक शायद तुम्हारे स्कूल में भी होगा कि बच्चे जो है ना एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, स्कूल आधा टाइम स्कूल की पढ़ाई भी कर रहे होते हैं और उससे ज़्यादा टाइम वो बिता रहे होते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। और ट्रस्ट में बता रहा हूँ, मतलब जब मैं कर रहा था तो शुरू में तो मेरे से एक भी प्रॉब्लम सॉल्व ही ना हो। आधे टाइम मैं ना मतलब उनको देख के डर जाता था। मैंने कहा यार ये तो मेरे से होगा ही नहीं, मेरे एग्जाम कैसे निकलेंगे। बट शुरू के 6 महीने जब ये करना शुरू करा तो एक सवाल ही सॉल्व ना हो। मतलब मैं जहाँ मैंने ज्वाइन करा था, मैंने क्रैश कोर्स सॉर्ट ऑफ एक जगह ज्वाइन किया था जहाँ पे सिर्फ 1 साल की तैयारी करी थी, क्योंकि पहले 1 साल 11th में तो मुझे पता ही नहीं था कि तैयारी करनी भी होती है। तो वहाँ पे करने के बाद मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि कोई बात नहीं आता तो कोई, मैं रोज़ किताब लेके बैठता था कि आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। बट हाँ मतलब मेरा वो रूटीन ज़रूर था कि मैं बैठता ज़रूर था कि मैं वो करना है। तो धीरे धीरे यू नो लाइक मुझे वो समझ में आना शुरू हुआ और इवेंचुअली आई क्रैक्ड थिंग्स। बट हाँ मतलब IIT ना देने का मेरा रीज़न मुझे ये था कि मुझे ऐसा लगता था कि मतलब ऑल्दो ठीक है ब्रांड का बहुत फ़र्क पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इट्स लाइक अ रैट रेस, एवरीबडी वांट्स टू गेट इनटू इट। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट पीपल हु आर क्रैकिंग दे आर बैड, दे आर सर्टेनली दे आर अ क्रीम, राइट। बट द पॉइंट इज लाइक ऐसा नहीं है कोई एवरेज इंजीनियर आज की डेट में भी अगर किसी आप एवरेज कॉलेज से आप कर ले रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि दैट यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग थिंग दैट दोज पीपल आर डूइंग। व्हाट डिफरेंशिएट्स IITs and these average colleges is the environment where they are studying, the crowd which is actually getting into. अगर वहाँ पे majority of the time अगर आप देखोगे, so वहाँ पे from first year itself I have majority of my friends today they are from IITs actually.
मगर जो जो IITs NITs मगर जो 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 डिफरेंशिएट करता है उनको और हम में वो ये है कि उनका और हमारा थॉट, जहाँ जो पर्सपेक्टिव है, एज आई सेड, कि चीज़ों को करने का मल्टीपल पर्सपेक्टिव से आप सोच सकते हो किसी भी चीज़ को। जैसे मैंने बताया, आप कोड लिखोगे, हर बार एक नई तरीके से सोचोगे, तो वो थॉट जो है ना, वो आप पढ़ के भी बना सकते हो, लोगों से बात करके भी बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है उसके लिए कि मुझे एक पर्टिकुलर कॉलेज में ही जाना है, या मैं अपने आप को इतना प्रेशराइज कर लूँ कि नहीं मुझे बस वही करना है। देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी। व्हाट आई स्टेट दिस इज, अगर नहीं है तो होना चाहिए। हाँ, नहीं है तो होना चाहिए। कि अगर I have also come across a lot of other people. There is very good friend of mine who has spent close to 15 to 16 years cracking UPSC. You know, like, and post 16 years, what he realized is that he should have taken a better call post 2 to 3 years itself. You know, and today whatever he is doing good. But what he's saying is like he's capable. He's actually capable of doing much more better things. But he wouldn't be able to do it because he can't travel back in time. चला गया वो समय जब वो कुछ कर सकता था। ठीक है। तो वैभव, अब जब कॉलेज स्टार्ट हुआ, हाउ वाज योर कॉलेज? वाज इट इजी फॉर यू? नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट स्टडी वाइज, बट इन जनरल। क्योंकि कॉलेज में ना मैंने ये क्वेश्चन क्यों है, जैसे मेरे लिए कॉलेज एंड हॉस्टल स्पेसिफिकली वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर माई लाइफ। ठीक है। बिफोर दैट आई वॉज अ वेरी पैम्पर्ड काइंड ऑफ अ चाइल्ड। जैसे आप सिंगल चाइल्ड थे, मैं भी सिंगल चाइल्ड था। एंड सिंगल चाइल्ड होने के लिए मैं ये चीज़ समझता हूँ कि हाउ पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, है ना, कि इकलौता है, राज दुलारा है। खैर मेरे केस में बिल्कुल मेरे केस तो बिल्कुल भी नहीं था। मेरे केस में थोड़ा ऐसा था। तो पर वो सब बदल गया, क्योंकि जब मैं हॉस्टल में गया फर्स्ट टाइम, तो एक चीज़ थी, जैसे मैं ना रात को लाइट में नहीं सो सकता था। ठीक है। मेरे को होता था कि यार लाइट्स ना सारी बंद होनी चाहिए। अगर एक वो लिटरली वो फ्यूज की रेड लाइट आती थी ना बचपन में, वो भी अगर है ना, मेरे को नींद नहीं आएगी। ठीक है। एंड जो हॉस्टल था वो 4 शेयरिंग में था थ्रू आउट। ठीक है। एंड इट चेंज्ड अ लॉट इन मी, बिकॉज फिर जब मैं हॉस्टल से निकला तो अब मेरे आसपास लाइट्स जल रही हों, लोग बैठे हों, भंगड़ा हो रहा हो, कुछ भी हो, मैं सो सकता हूँ। ठीक है। दैट इज अ वेरी लेम एग्जाम्पल, बट यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, राइट? आई अंडरस्टूड। हाँ। सो बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो मेरे लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स हैं, वो एक तो मेरे स्कूल टाइम के हैं और एक है जो मेरे कॉलेज टाइम के हैं। ठीक है। आई थिंक दोज पीपल आई कैन टेक अ बुलेट फॉर, राइट? एंड दोज पीपल कैन ऑल्सो टेक अ बुलेट फॉर मी, right? So those friendships were found in college, right? So how was your college? And let's start from the beginning, that how you got into your college, and how was friendship, and how was then study? So as I said, मैंने CET दिया था, तो प्रेफरेबली मुझे मतलब मेरे पेरेंट्स को ये था कि शहर ना छोड़ना पड़े। तो जो भी काउंसलिंग्स हो रही थी उसमें जब भी शहर का बाहर का नंबर आता था तो हम वापस आ जाते थे या हम जाते ही नहीं थे, क्योंकि हमें पता चल जाता था कि ये तो शहर का बाहर का है। सो फाइनली जब मेरा IB यूनिवर्सिटी में हो गया था, तो मैंने मैकेनिकल लिया था प्रेफरेबली। मैंने कंप्यूटर साइंस लिया ही नहीं था। अच्छा। मैंने मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन लिया था, जिसमें उनका जो ब्रोशर था ना उसमें कार वगैरह बनी हुई थी। मतलब एज आई सेड, मुझे ज़्यादा पढ़ाई का इतना शौक था नहीं, तब भी नहीं था, क्योंकि मुझे ये चाहिए था कि बस किसी तरीके से पीछे छुड़ा लूँ। तो जब मैं Day 1 पे गया, तो मैं ये एक इंसिडेंट इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, ये मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रहा था। तो जैसे स्कूल खत्म, जैसे एग्जाम्स हो जाते हैं ना, तो 1 अप्रैल पे बच्चे स्कूल चले जाते हैं। सेम डे मेरा फर्स्ट काउंसलिंग में नंबर आ गया और मैं चला गया अगले दिन कॉलेज। पूरा कॉलेज बिल्कुल खाली। तो मैं जब गया तो मेरे को वहाँ पे एक प्रोफेसर मिले, उन्होंने बोला कि क्या कर रहे हो यहाँ? मैंने कहा सर पढ़ने आया हूँ। तो कह रहे हैं अभी तो बहुत टाइम है, पहले सेकंड काउंसलिंग खत्म होगी तब शुरू होगा, क्या करने आए हो यहाँ? तो मैंने कहा ठीक है फिर। तो उन्होंने पूछा कौन सा ब्रांच? तो मैंने बोला मैकेनिकल। तो कह रहे तुम्हारी तो रैंक भी बढ़िया है, उसके बाद भी तुमने मैकेनिकल ले लिया? तो मैंने बोला हाँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है। मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट उस समय उस कॉन्वर्सेशन में मैंने बस इतना बोल दिया कि मुझे ज़्यादा किताबों में इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने पढ़ाई तो बेटा तुम्हें अब करनी पड़ेगी। तो उन्होंने ना एक्चुअली में उसी समय ना, मतलब ही वाज कैरिंग बंच ऑफ बुक्स, तो उन्होंने तुरंत दिखाई दो कि इतनी मोटी किताबें तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी। आई स्टिल रिमेंबर। और वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे कि तुम्हें पढ़नी ही पड़ेंगी।
तो मैंने बोला ये तो गलती हो गया मेरे साथ मतलब धोखा हो गया मेरे साथ एक्चुअली में। तो एनीवे तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा सेल्फ फंडेड हो या मतलब लोन वगैरह लिया है, तो मैंने लोन तो लिया ही है। तो बेटा कह रहा फिर तो मुश्किल ही है, तो मैं नौकरी मिले मैकेनिकल में, तो मैं यहाँ तो सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि अब तो चलो ठीक है, फिर भी थोड़ा सा अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक लास्ट डेकेड में थोड़ा सा चेंज आया है। पहले तो बहुत ही मुश्किल था कि आपको मैकेनिकल सेक्टर में। And this was in which year? 2012. I mean, when I joined in 2012 was the passing year, and I 2008. Yeah. So 8 में मैंने जब ज्वाइन किया था तो बहुत ही मुश्किल था। Anyway, तो मैंने सेकंड काउंसलिंग में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मैंने ऑप्ट करा था, और सेम ही कॉलेज में मुझे मिल गया फिर से। तो अब यहाँ पे आने के बाद मैं जब आता हूँ तो मेरे कंप्यूटर साइंस तो कोई था ही नहीं मेरा बैकग्राउंड, और मुझे पढ़ाने वाले बहुत अलग अलग तरीके के लोग मिले, टीचर्स को छोड़ के। That's a fact. हाँ, मतलब मुझे मेरे लाइफ लेसन्स, बुक लेसन सब बहुत अलग अलग तरीके के लोग मिले। तो मैं फर्स्ट बेंच पे ही, मेरे पूरे 4 साल में फर्स्ट बेंच पे ही बैठा हूँ, मगर फर्स्ट बेंच वाली कोई हरकतें नहीं थी हमारे में। तो मैं और मेरे 2 दोस्त हैं, मतलब जो हम फर्स्ट बेंच पे बैठे थे, ये एक ग्रुप है जो कि प्रेफरेबली मतलब सुनना ढंग से, यू नो लाइक उस जो भी लेक्चर चल रहा है उसको उस तरीके से परसीव करना कि किस तरीके से उसकी रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकती है, या हम मतलब उसको किस तरीके से यू नो लाइक एक रियलिस्टिक व्यू कैसे दे सकते हैं। और इंडियन कॉलेजेस में ना मेरे ख्याल से आई थिंक दैट कुड बी अ डिफरेंस कि IITs में यही बच्चों को बताया जाता है कि मतलब तुम्हारी रियल लाइफ सिनेरियोस क्या हैं, बट जो एवरेज जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके अंदर यही एक डिफरेंस है कि आपको बस एक बुक पकड़ा दी जाती है और आपको बस एक नंबर स्कोर करने होते हैं। आई थिंक मैंने बुक्स तो शायद ही पढ़ी होंगी कॉलेज में भी। मेरा जो नॉलेज बेस हुआ करता था वो इंटरनेट था या फिर मेरे दोस्त थे। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ, मतलब आई थिंक मेरा करियर शेप करने में फ्रॉम माई फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर मेरे फ्रेंड्स हैव प्लेड अ वेरी वेरी वाइटल रोल। एंड द रीज़न इज क्योंकि मुझे कंप्यूटर साइंस का सीन ही मालूम था, बायो बैकग्राउंड था मेरे पास, कंप्यूटर साइंस था ही नहीं मेरे पास। तो जो मेरा फर्स्ट बेंचर दोस्त है अभी ही इज़ वर्किंग फॉर रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, तो वो कंप्यूटर साइंस में एकदम एक्सपर्ट आदमी था, मतलब उसका C++ एकदम थ्रू, मतलब वो जैसे सीख के आया हो। तो वो उसने मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाना शुरू करा, बट फिर भी आप समझ रहे हो ट्यूशन टाइप का होता है। तो आई यूज्ड टू ट्रैवल बाय बस। तो मुझे एक MCA ग्रेड ऑलरेडी एक असिस्टेंट प्रोफेसर मैडम मिली, उन्होंने मुझे देखा और शी वाज अ स्ट्रेंजर टू मी, as in like she used to study within our college and she was doing some sort of a masters. So उन्होंने बोला कि मतलब she was able to see कि मैं वो किताब रोज खोल के जा रहा हूँ और सेम ही रूट से जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला तुम क्या हो, इतनी परेशान क्यों दिखते हो इतने। तो बोला कि मैंने मतलब आई टोल्ड हर द एक्चुअल प्रॉब्लम। तो उन्होंने बोला डू यू माइंड इफ आई हेल्प यू विद दिस। तो मेरा एक पूरा सेमेस्टर है जिसने मुझे C पढ़ा के पास कराया, वो था DTC में पढ़ के मैंने पास हुआ हूँ मैं उसमें। सही, ठीक है। तो और ऐसे धीरे धीरे करके मतलब आगे मैं बढ़ता गया, और मेरे मतलब मैं स्कॉलरशिप होल्डर नहीं हूँ, मगर मेरा जो दूसरा ग्रुप था वो स्कॉलरशिप होल्डर था। और उनका ये था कि वो बच्चे इतने अच्छे थे कि वो जो भी पढ़ रहे हैं ना, मतलब क्या इंपॉर्टेंट है वो नंबरों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुझे पढ़ा दिया करते थे। और जो मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब जो बुक में नहीं है पर जिससे हम एक्चुअली में कुछ अच्छा कर सकते हैं, वो कोई ना कोई हमें लैब असिस्टेंट हुआ करता था हमारे कॉलेज का। तो वो कुछ कर रहा होता, उसको पता था कि ये किताब पढ़ने वाले तो है नहीं, इनसे वो बात करी जा सकती है, तो वो भी हमें कोई ना कोई हेल्प कर दिया करता था। तो ऐसे करके मुझे मल्टीपल जगह से जहाँ कोई नॉलेज बांट रहा हूँ वहीं रुक के देख लिया, सीख लिया, कर लिया। किताब मेरे ख्याल से हमने शायद लास्ट में उठती होती। ठीक है यार, मतलब कुछ इसमें से भी देख के लिख देना है। अदरवाइज हमारा लिखा हुआ पेपर में लिखा हुआ प्रोग्राम जो होता था ना, हमारा टीचर मतलब खुद बोलता था कि मतलब आउट ऑफ नोवेयर कि मतलब यार तुमने लिखा तो बहुत बढ़िया है। सही ठीक है। तो अब कॉलेज खत्म कैसे हुआ? अब फाइनल ईयर में आ गए थे, तो 2012 में फाइनल ईयर में आने के बाद मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था। तो मेरे पेरेंट्स समहाउ आई एम टुडे एज वेल आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम कि मैं जो भी कुछ कर पाया आई थिंक वो उनके एफर्ट्स की वजह पे ही था। तो वो करने के बाद
मेरे पास आई वुड रिकॉल अ टाइम वेयर आई वॉजन इवन केपेबल ऑफ ट्रैवलिंग इन बस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पोस्ट माई ग्रेजुएशन। सो मेरे दोस्तों ने जब उस समय 2012 में शायद थोड़ा सा मार्केट बहुत ख़राब थी, रिसेशन आ गया था, तो नौकरी थी नहीं यहाँ पे। तो जो पंजाब के कॉलेजेस हैं, यूपी के कॉलेजेस हैं, वहाँ पे ना क्या बोले, मतलब एक तरीके से ना जॉइंट कॉल्स होती थी जहाँ पे लोग जा रहे हैं, मास रिक्रूटर्स आ रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं करके टाइप्स। तो बस पता चल जाता था कि वहाँ पे हैं। तो मेरे दोस्तों ने मेरे पैसे दिए हैं बस के, तो वो मुझे लेके जाते थे अपने साथ, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने मुझे मेरे उस समय में साथ दिया। और आई थिंक वही वो लोग हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में मिला तो शायद सैकड़ों लोगों से हूँ पूरी ज़िंदगी में, मगर वो गिन चुन के वो 3-4 लोग ही हैं जिनसे मेरी बात हो रही है। और ऐसा नहीं है, आज की डेट में भी उनसे 6 महीने में शायद एक बार बात करता हूँ, और वो भी मुझसे 6 महीने में एक बार करते हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतनी आगे बढ़ चुके हैं, और ये बोलूँ कि लाइफ प्रायोरिटीज ऐसी सेट हो चुकी हैं कि हमें पता है, मतलब वी आर देयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कि अगर मेरी लाइफ में कोई लो आ रहा है या उनकी लाइफ में कोई लो आ रहा है ना, वी वुडंट गिव अ सेकंड थॉट कि 6 महीने से बात नहीं करी, क्या ही सोचेगा या क्या ही सोचेगी। वो सीधा कॉल कर देंगे एंड वी आर देयर फॉर ईच अदर। सो वो करते करते मेरा पहला मेरा ऑफ कैंपस ब्रेक मिला था, वो बहुत ही मतलब एकदम सिनेमैटिक वे में हुआ था कि मैं रोज़ घर बैठ के मतलब मेरे घर पे MTNL का ब्रॉडबैंड लगा होता था कि बहुत मुश्किल से चलता था वो, और वो भी फ़ोन से निकाल के लगा हुआ चला, KBPS में स्पीड आती थी। हाँ। और मेरा काम ये था, क्योंकि हमें ऑफ कैंपस में भी ना, मतलब मेरे कैंपस प्लेसमेंट ऐसे हुई थी, और मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि हमें HCL BPO में जॉब मिल गई थी, कैंपस में आके प्लेसमेंट हुई है हमारी, ठीक है। तो अब मगर वो उसमें बहुत कम, मगर सब लोगों को डर था कि भाई इतनी मार्केट ख़राब है, कम से कम कोई तो जॉब सिक्योर करें। और हमारी ना ज्वाइनिंग डेट जिस दिन वो हमें वो मिली थी उसके 1 महीने बाद की थी, आई स्टिल रिमेम्बर। तो हमने बोला कि लेके रख लेते हैं ताकि घर वालों को भी तसल्ली हो जाए कि नौकरी है। उनकी भी समझ में इतना नहीं आ रहा था कि उस समय वो क्या है, उन्होंने उसको कुछ, आपका कोई पहले से बैकग्राउंड भी नहीं था ना, जो इंजीनियर हो या एग्जैक्टली। तो अब आप समझो ना कि जब हम बोलते हैं ना कि काश अगर कोई होता कि हमें कुछ बेटर सजेस्ट कर पाता, तो आप समझ रहे हो कि उस समय वो जो कॉल लेना था ना कि मैं वो जॉब करूं या ना करूं, वो एक बहुत मुश्किल कॉल है। आप समझो एक ऐसा बच्चा है जिसके पास अभी, मतलब वो तो वैसे ही फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट है, ठीक है, उसको एक जॉब भी मिल गई है और वो फाइनेंशियली फ्री भी हो जाएगा somehow, मतलब he or she will be able to support their family as well, but he has a very different plan in his mind कि मैं इसके लिए नहीं बना, मतलब आप समझ रहे हो, बट पता नहीं है कि, मगर वो पता नहीं है करूं या कि ना करूं। वो बहुत ही मुश्किल कॉल है, आप समझ रहे हो। उस समय के लिए उस बच्चे का उस स्टेट ऑफ माइंड पे वो ये कॉल लेना कि हाँ ताई नौकरी, कि मैं पिछले 6 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, कोई मिल ही नहीं रहा है, मतलब आप समझ रहे हो। और जो HCL BPO जो है ना, मतलब वो ऐसा भी नहीं है कि देखो BPO 1000 तरीके के हैं, एक्चुअली वो BPO भी नहीं था, वो कुछ टेलीकॉम, मतलब इट वाज लाइक अ कस्टमर सपोर्ट सॉर्ट ऑफ अ जॉब। तो एनीवे, तो ऐसा उस समय भी वो जॉब मिलना इतना आसानी तो नहीं था, बट हमें मिल रही थी तो हमारे लिए हमें अच्छी बात थी, बट वो एक टफ कॉल थी। तो मैंने और मेरे 1-2 दोस्त और हैं, जिसमें से एक दोस्त ने प्रेफरेबली आज भी उसने मतलब आफ्टर अ वाइल व्हाट ही अंडरस्टूड पोस्ट एक्सप्लोरिंग जॉइनिंग कॉर्पोरेट, एंड व्हाट ही अंडरस्टूड इज दैट ही इज नॉट हैप्पी ओवर देयर, एंड व्हाट ही इज डूइंग इज ही इज विलिंगली बीइंग अ टीचर इन अ विलेज, एंड ही इज हैप्पी डूइंग दैट। वाओ। and he's doing it and he has no regret about it. मैं बता रहा हूँ, मतलब जो मेरे दोस्त हैं उनमें से एक ये है और बहुत खुश है, वो कोई दिक्कत नहीं है। खुश होना इंपॉर्टेंट है ना, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। आप जो भी कर रहे हो आज की डेट में, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, दैट आई एम एंजॉइंग व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अच्छा काम कर रहे हो, आपके हिसाब से अगर आपको लग रहा है अच्छा कर रहे हो ना, तभी आप अपने आप को मोटिवेट कर पाओगे कि मैं इससे और अच्छा कैसे कर सकता हूँ, what is next that I can do, or how can I actually improvise. If you believe that, if you're not confident enough to understand, or even if you're not in a situation to assess what exactly you're doing right now, then probably you wouldn't be able to decide what next. Right. तो anyway, तो मैं रोज़ उस इंटरनेट के थ्रू ना ऑलमोस्ट 300 से 400 एप्लीकेशन रोज डालता हूँ। आप समझ रहे हो, बस क्लिक करे जा रहा हूँ मैं। हर तरीके की जॉब वेबसाइट्स जो होती थी ना, मतलब अब तो बहुत सारी खुल गई हैं। उस समय monster.com, naukri.com,
एक करियर नेट करके भी होती थी, बहुत सारी थी, इंडीड, सब डाली मैंने, जिसपे मुझे मौका मिल जाए कोई तो बुला ले। तो एक जगह से मुझे जो नौकरी मिली थी वो ऐसे थी कि मुझे टेक्निकल रिक्रूटर बनने को मिला, मतलब और वो एक लेट नाइट शिफ्ट थी। मतलब उसमें ये था कि कुछ तो मेरा टेक वाला पार्ट काम आ रहा है, बट और वो कोई कहीं तो नोएडा में था, बट मैंने वो भी ज्वाइन नहीं करा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि बाय द टाइम मैं वो ज्वाइन करता ना, मुझे एक और जगह काम मिला। वो ये था कि मैं एक जगह मेरे घर के पास ना, मतलब एपिन टेक्नोलॉजीज करके हुआ करता था, दैट वाज बेसिकली टेक्नोलॉजी पार्टनर फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स। तो उन्होंने क्या करा कि मैं वहाँ गया और मैं वहाँ ना जावा सीख रहा था, मतलब एक एडवांस वर्जन। कॉलेज में तो जो पढ़ाया उन्होंने पढ़ाया ही था, और क्या ही तुम्हें भी पता है कि मतलब वो कितना ही बढ़िया हो रहा होता है। तो वो एडवांस वर्जन सीखते सीखते ना उनको लगा कि ये तो काफ़ी अच्छा, हम जो बता रहे हैं इसे पहले से काफ़ी चीज़ें पता भी हैं, और जो हमने से बताया ये बहुत जल्दी ग्रैब कर गया, एंड ही कैन बी अ गुड टीचर। तो उन्होंने आफ्टर अ वाइल, जब मुझे कुछ नहीं मिला ना, तो मतलब दे ऑफर्ड मी कि क्या तुम हमारा पार्ट टाइम ट्रेनर बन जाओगे। मैं पार्ट टाइम मैं आपको फुल टाइम ट्रेनर बनने को तैयार हूँ। तो जो मेरी पहली नौकरी थी वो सिर्फ 2,000 रुपये की थी, और मुझे उनका कोई नया सेंटर खुला था मॉडल टाउन में, तो मैं घर से वहाँ जाना और आना। तो वो पढ़ाते पढ़ाते मतलब जब मेरा जो भी टाइम बच जाता था उसमें मैं वो रोज़ डाल रहा हूँ जॉब एप्लीकेशंस। समहाउ मुझे एक दिन एक कॉल आता है, और ऑल ऑफ अ सडन मतलब मेरे को बोलते हैं कि मतलब उन्होंने मेरे बारे में जो भी कुछ पूछा, एंड व्हाट ही सेड इज बेसिकली दैट वी आर ट्राइंग टू लुक फॉर समवन लाइक यू, वुड यू लाइक टू गिव इट अ ट्राई। मैंने कहा ठीक है, बोला आ जाओ तुम ऑफिस। तो मैं वहाँ जाता हूँ और उन्होंने मुझसे एक गेम बनवाया, मतलब वो चलना चाहिए, ठीक है, मतलब बेसिकली वो गेम चलना चाहिए। तो मैंने कहा ये तो बहुत सही है, मतलब कोई मतलब आप समझ रहे हो, वो कोई प्री डिफाइंड क्वेश्चन नहीं कि जावा क्या है, कैसे चलता है, क्यों चलता है, खुद सोचना है। मतलब आप समझ रहे हो, कोई बुकिश क्वेश्चन नहीं है। द बेस्ट पार्ट वाज कि मुझे कुछ रटा हुआ नहीं बताना था। उन्होंने बोला कि हमें गेम चाहिए, तो मैंने उनको एक क्लाइंट सर्वर बेस्ड मॉडल ना, उस समय मुझे टॉमकैट वगैरह चलाना जितना आता था, वो मैंने सर्वलेट बेस्ड उनको एक बना के दिखाया, जिस पे वो खुश हो गए। तो मैं घर आ गया, मैं कोई जवाब नहीं था। थोड़े दिनों बाद मुझे एक और बार कॉल आता है, उन्होंने बोला हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमें घंटे भर में उसका सोल्यूशन चाहिए। इट वाज लाइक अ ओपन बुक सोल्यूशन, मतलब एज एन ओपन बुक टेस्ट। तो मैंने उसका सोल्यूशन मैंने सोचा कि करने की कोशिश करते हैं, और मैंने 1-1.5 घंटे में उसका जवाब दे दिया। तो कई दिन तक मुझे कोई फ़ोन नहीं आता। उसके बाद एक फ़ोन आता है और उन्होंने बोला है कि वी आर प्लानिंग टू हायर यू। मैंने कहा ये तो बहुत सही है। तो उन्होंने मुझे जो तनख्वाह ऑफ़र करी, उस समय मेरे पिताजी से उन्होंने मेरे को तनख्वाह ज़्यादा ऑफ़र कर दी थी, जो कि मतलब आप समझ रहे हो कि मेरे को अपने कानों भरोसा ही नहीं हो रहा था कि अच्छा ठीक है कि जिस समय मेरे दोस्त, उसमें बहुत कम लोगों को नौकरी मिल रही थी, क्या मैं नौकरी मिल नहीं रही। और मुझे कोर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये था कि वो मतलब जो मोमेंट ऑफ जॉय बोलते हैं ना, कि मेरी आंखों में जो थोड़ा सा आंसू आ जाना, कि मेरा वो डिसीजन कितना पेनफुल रहा था मेरे लिए, कि जब मैंने वो जॉब छोड़ दी थी जो मुझे मिली थी, और उसके बाद मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रही है, और सडनली वो मुझे मिल गई ना, तो मतलब आई वाज सो हैप्पी कि चलो ठीक है यार, समहाउ मुझे ये मिल गई, और मैं बहुत खुश था। तो मैंने वहाँ ज्वाइन करा, और मेरी पहली कंपनी अड्डा 52 थी, और उस कंपनी में ऑलरेडी 4 डेवलपर थे और 5वां मैं था। बहुत सही। तो ये मेरी करियर की एंट्री पॉइंट थी। बहुत सही। वैभव, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है जो आई थिंक आजकल हर किसी के दिमाग में है, वो ये है कि गोइंग फॉरवर्ड एंड इवन नाउ कॉलेजेस आर बिकमिंग वे एक्सपेंसिव। ट्रू, राइट। कॉलेजेस के जो फी स्ट्रक्चर्स हैं आउट ऑफ रूफ हो रखे हैं आजकल, है ना। तो दैट कैन बी रियली चैलेंजिंग टू मैनी, बिकॉज अग्री। एवरेज आई थिंक इंजीनियरिंग करने के लिए अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज में जाओगे जो ठीक ठाक है, उसमें 10 से 15 लाख तो नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो हाउ टू मैनेज दैट चैलेंज एंड स्टिल बी फोकस्ड एंड ड्रिवन। व्हाट आई मीन इज, जैसे मेरे केस में जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, तो ऑब्वियसली यार बहुत ज़्यादा पैसे एक साथ होते हैं, और एक मिडिल क्लास घर से आता हूँ, वहाँ पर इतना पैसा एक साथ लगा देना, घर पे फाइनेंशियल चैलेंजेस होंगे ही होंगे, ठीक है। तो मेरे लिए तो मैं हर टाइम मेरी ऐसे टेंशन रहती थी कि यार बहुत पैसे लगा दिए घर वालों ने, तो कुछ तो करके निकलना है, कुछ तो बन के निकलना है, बहुत ज़्यादा टेंशन में था। बट वही टेंशन मैं तो चलो बन गया,
पर व्हाट अबाउट दोज पीपल जो, जैसे आपने बताया आप मैकेनिकल में गए, बट वहाँ पर जॉब्स ही नहीं थी, पर मैकेनिकल का फीस स्ट्रक्चर तो सेम है। अग्री है ना? तो उन लोगों का क्या, जो पढ़ने के बाद भी उनको पता नहीं चल रहा, अभी जॉब्स नहीं मिल रही, और फिर यूपीएससी की तरफ जा रहे हैं, बैंक पीओ की तरफ जा रहे हैं, है ना? उनमें जो निकल जाएं बहुत बढ़िया यार, बट उनका क्या जो नहीं निकल पा रहे, हाउ टू स्टे फोकस्ड एंड स्टिल बी ड्रिवन अबाउट इफ यू वांट टू डू समथिंग और नॉट? See, one thing that I learned, like from my past or my personal experiences, that you have to, as I said, कि मतलब ये, मतलब आप ये समझ लो कि ये अब मतलब अपने आप हो गया या कुछ था या जो भी है। स्कूल में ना जो मैंने बोला था ना, कि मैंने सोचा कि मेरे को जो बोला नहीं गया था वो बात मुझे स्ट्राइक कर गई थी, कि आप अपने ऑप्शन सारे ओपन रखो। मतलब आप समझ रहे हो कि आप इंस्टेड ऑफ डिसाइडिंग एट दैट पॉइंट कि मुझे यही करना है, आप ये सोचो मैं ये भी कर सकता हूँ, है ना? तो उन्होंने ना, मतलब ये जो बात थी ना, ये कहीं ना मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ना कहीं सेटल हो गई थी, कि मुझे सिर्फ एक चीज़ के साथ नहीं जाना, मैं ये भी कर सकता हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ। अब आप समझो कि एक तो आपने बोला कि मैंने, मतलब बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी तो मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना सिर्फ इंजीनियरिंग बल्कि MBA जो 20 स्कूल्स हैं वो बहुत महंगे हो चुके हैं। मतलब आप बिना लोन लिए, और अभी मैं मेडिकल की तो बात ही नहीं कर रहे आप, बिल्कुल सही बात है। तो आप तो उसमें बिना लोन लिए आप पढ़ाई कर नहीं सकते हो। तो मेरा बैच, जैसे मैंने बताया, मुझे और एक दो लोगों को छोड़ के, हमें छोड़ के कोई भी बंदा, मतलब वो सारे ही डॉक्टर्स हैं, और मुझे पता है उन्होंने अपनी लाइफ कैसे मतलब वो अपने आप को इस स्टेट में लाने के लिए, वो जहाँ भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल डॉक्टर्स बने हैं, उसके लिए उन्होंने मतलब कितनी मेहनत करी है या कितना ही फाइनेंशियली पैसा बर्न किया है, वो तो वही बता पाएंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से। बट प्रॉब्लम ये है आज की डेट में, अब आप समझो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हमें वी बीइंग इंडियंस और एशियंस, what we have been told is like you have very few options to become a doctor, lawyer, engineer, or to be a civil servant, right? These are 3-4 options that you are all actually given. मतलब entrepreneurship तो अभी रिसेंटली अब मतलब पिछले 3-4 साल से जो है ना, वो लोग बच्चों में इंकलकेट करी जा रही है कि अच्छा नहीं, ये नहीं, तुम ये भी कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ जॉब सीकर यू कैन ऑल्सो बिकम अ जॉब गिवर एज वेल, राइट? तो मतलब अब होता क्या है कि अगर आपको लगता है कि मतलब मान लीजिए अगर मान लो मेरा नहीं होता कहीं पर भी, जैसे कि मैंने बोला कि मैं रोज़ ट्राई कर रहा था, and today as well, like even today what I believe is like it was some sort of a blessing that I received a call. Probably someone else might have also got a call, क्योंकि मैं एक इतनी पॉपुलेटेड कंट्री में रहता हूँ कि मेरे बदले किसी और का नंबर भी डायल हो सकता था उस दिन, जो मुझे फ़ोन आया कि तुम आ जाओ और ये कर दो, और मुझे वो फ़ोन आ गया। और मतलब मैं नहीं कहता कि मैंने कोई बहुत अच्छा कुछ करके दे दिया था, इट वॉज अ वेरी एवरेज थिंग। तो पर ड्रिवन कैसे रहें कि इतना पैसा बर्न करने के बाद अगर कुछ हो जाए तो वेल एंड गुड, बट वो कुछ होने तक की जर्नी, एंड उसके बाद अगर कुछ नहीं हो रहा तो देन वी हैव टू ट्राई समथिंग एल्स, राइट? अग्री। हाउ टू स्टे ड्रिवन? वो ड्रिवन रहने के लिए ना आपको यू हैव टू बिल्ड पेशेंस इन यू। व्हाट आई हैव सीन इज दीज डेज, कोविड से पहले, इसके पीछे ना, इसका आंसर करने से पहले ना मैं तुम्हें एक चीज़ समझाना चाहूँगा। वो ये है कि कोविड से पहले ना एवरेज पैकेजेस जो थे ना वो काफ़ी कम थे। ठीक है, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, बेस्ट और वर्स्ट की नहीं कर रहा। एवरेज पैकेज काफ़ी कम हुआ करता था, जो लोगों को CTC ऑफर होता है, जिसको कॉस्ट टू कंपनी बोलते हैं, है ना? मगर कोविड में ना फिर क्या हुआ, वहाँ पे टैलेंट हंट शुरू हो गया, हंगर, जहाँ पे लोगों ने पहले फायरिंग हुई और हुई, फिर एकदम से लोगों को रियलाइज हुआ कि अब चीज़ें बैक टू नॉर्मल आ रही हैं, लोग हैं नहीं, तो फिर एकदम से बूम आया। तो उसमें फिर क्या हुआ कि लोगों ने भी फायदा उठाया कि ये एक कंपनी छोड़ दूसरी छोड़ तीसरी, तो उन्होंने वापस कर लिया। मगर अभी क्या है ना, वापस इट इज़ कमिंग बैक टू द नॉर्मल ट्रैक हाउ इट वाज। एंड what I have seen is like I am like even today as well I interview a lot of more other candidates even in my current company or maybe in my past company. The youngsters they have a very higher expectation. उनको लगता है कि मैं इस पैसे से, उनके माइंड में ऑलरेडी एक नंबर है, वो ये कहते हैं सालों से सेट हो गया। एग्जैक्टली, उनको ही लगता है इससे नीचे तो मैं काम करूंगा या करूंगी ही नहीं, एंड सैलरीज आर स्टिकी। एग्जैक्टली, तो उनको लगता है कि मैं इससे नीचे तो काम करूंगा या करूंगी ही नहीं। अब अननोइंग अबाउट द फैक्ट कि वो अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी पहले के मुकाबले वैसे ही बहुत कम है। तो अगर समहाउ इफ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू सेटल फॉर अ वेरी वेरी लो अमाउंट,
What I am saying is like you have to look for an average option. That is why I used term average in the beginning. कि जो average package है आपको वो देखना पड़ेगा मार्केट में क्या कि मार्केट में क्या है. अब आप समझो कि जरूरी नहीं है कि वो एवरेज एक्सेप्ट करने के बाद आप लाइफ लॉन्ग एवरेज रहने वाले हो. जैसे कि मैंने बताया कि मैंने स्टार्ट कैसे किया कि मुझे पढ़ाई में ज़ीरो इंटरेस्ट था और आज की डेट में ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि मैं बिना पढ़ाई करे मेरा काम हो जाए, क्योंकि मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ या एक ऐसे लाइन ऑफ जॉब में हूँ जहाँ पे बिना पढ़ाई करे मैं अगले दिन कुछ डिलीवर ही नहीं कर सकता. आप समझ रहे हो? देयर इज इट्स लाइक अ टोटल रेसिप्रोकल. मेरा क्या थॉट प्रोसेस था, मैं कैसे बड़ा हुआ और मैं क्या कर रहा हूँ, इट्स टोटली डिफरेंट. तो पॉइंट वही है कि यार देखो कोविड में वो सारे पैकेजेस जो थे ना, जो लोगों को जो CTC जो ऑफर हो रहा था ना, क्योंकि उस समय टैलेंट हंट था, हर कंपनी ना टैलेंट एक्वायर करना चाह रही थी किसी तरीके से. क्योंकि अब आप ये समझो कि लोगों को मतलब आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स. समहाउ लाइक इट वाज सिचुएशन वेयर दे वर हायरिंग अ लॉट मोर अदर पीपल even if they were not required, to be very honest. And company was ready to pay the price. अब क्योंकि post COVID things are coming back to normal, people are being asked to join office, right? तो अब इतना ऑफर हो नहीं रहा है. तो अभी जो मैं जिन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करता ना, जो प्रिसाइसली जो मेरे यंगस्टर्स हैं उन they already have a number, fixed number, and they don't want to go like below that. मुझे लग रहा है कि उनको लगता है ये तो हमारा हक है. हाँ, हक है, समझना गलत नहीं है, हक समझना गलत नहीं है, बट मार्केट समझो ना. हाँ एग्जैक्टली. और दूसरा ये भी है कि आप इस बात को समझो कि ये भी मत समझो, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत नीचे चले जाओ, मैं आपको कह नहीं रहा हूँ कि आप ऐसा करो, बट मैं ये कह रहा हूँ यू हैव टू लुक फॉर एन एवरेज ऑप्शन टू स्टार्ट. यू नो इफ यू आर एक्चुअली स्टार्टिंग करियर इन इंडिया, ईदर यू आर एन आउटशाइनिंग पर्सन, एज इन कि मतलब मेरे पास इतनी अल्ट्रा एज इंफॉर्मेशन है कि मैं कंपटीशन में बैठ के 10,000 लोगों को बीट करके मैं फर्स्ट आ सकता हूँ. देन प्रॉब्ली यू माइट बी अ गाय और अ गर्ल हु कैन एक्चुअली गेट इनटू गूगल एट फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ, राइट? तो हम लोगों की जनरली क्या ही होती है ऑप्शन, हम यही बोलते हैं ना कि समहाउ मुझे अमेजोन, गूगल या मांग जैसी किसी कंपनी में मेरे को पहली बार में मुझे वो ऑप्शन मिल जाए, राइट? तो बट मैं वही कह रहा हूँ कि द रियल लाइफ सिनेरियो इज क्वाइट डिफरेंट. अब आप समझो कि अगर जिनको मिल जाए बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा, you should aim for it. एग्जैक्टली. मगर ये वो 10% लोग हैं, आप समझो. हम बात कर रहे हैं उन बचे हुए 90% लोगों की जिनको वहां तक आना है. ऐसा नहीं है कि वो बचे हुए 90% लोग उन कंपनीज में जा नहीं सकते, बिल्कुल जा सकते हो. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे करियर के कितने साल बीतने के बाद मेरे को पेपैल में ऑप्शन मिला, मगर उसके पीछे का और जो मैं अपने लिए एक्सपेक्ट कर रहा था कि the money that I'll be able to drive out of that organization is something that I was able to draw it out after 10 years, after a decade. But I don't regret about it. The point is कि कहीं ना कहीं मुझे मेरी लाइफ में स्टार्ट करना था. अगर आप सोचो कि अगर मैं शुरू में ही बोल देता कि मुझे चाहिए ही इतने या मुझे करना ही इतना है, तो हो सकता है ना, जो मैंने बोला कि वो जो एक अपॉर्चुनिटी मुझे आई थी उस समय, जो उन्होंने मुझे जो भी पैसे उन्होंने ऑफर करे थे, और ऑनेस्टली कह रहा हूँ उस समय मेरे और भी दोस्तों को नौकरी मिली थी और वो काफी ज्यादा थे उनसे. मगर मैं सच बोल रहा हूँ, आज जो मैं कर रहा हूँ और वो जो कर रहे हैं ना, उसमें जमीन आसमान का अंतर है. You mean जो आप इस टाइम इनकम आपकी है? हाँ एग्जैक्टली. जो इनकम है ना, जो वो भले बाहर बैठ के जितना कमा रहे हो और जो मैं बैठ के कमा रहा हूँ ना, वो कहीं ना कहीं बराबर है, पहली बात. और दूसरा ये है द क्वालिटी ऑफ वर्क जो मैं कर रहा हूँ ना, उसमें जमीन आसमान का अंतर है. तो स्टेट ड्रिवन रहने के लिए जरूरी नहीं है कि जो आपने सोचा है वही हमारी प्लान बी वाली बात है. एग्जैक्टली. यू हैव टू लुक फॉर alternate options. You should be open कि what else I can do. कि अगर ये नहीं हुआ, ये नहीं तो मैं ये और क्या कर सकता हूँ. जरूरी नहीं है कि मुझे उसी चीज पे स्टिक करके रह जाना है, क्योंकि ऐसा करने में आप समझो, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डाइग्रेस कर जाओ अपने फोकस से, बिल्कुल करो. यू शुड स्ट्राइव फॉर योर टारगेट्स. कोशिश करो कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं, मगर हर एक चीज की ना एक लिमिट होती है. उस लिमिट, जैसे हमें ही आज की डेट में काम करने को मिलता है ना, तो उसको करने के लिए ना एक टाइम दिया जाता है, टाइम लाइन दी जाती है. बट दैट टाइम लाइन डजंट मीन कि हमें प्रेशराइज किया जा रहा है. उसमें वो टाइम लाइन देने का मतलब ये है कि द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो वेरी मच सर्टेन कि जब भी हम कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करने जाएंगे ना, तो एक सोल्यूशन तो चुनेंगे, पर उस सोल्यूशन को उस टाइमलाइन के अंदर हमने अचीव कर लिया तो वेरी गुड. मगर अगर नहीं हो पा रहा ना, देन वी विल हैव टू लुक फॉर अदर ऑप्शंस, प्लान बी. ये नहीं तो और क्या. बिल्कुल. क्योंकि अगर वो टाइम फ्रेम ही निकल गया तो उस सोल्यूशन का कोई फायदा नहीं है.
अगर आप मार्केट में प्रोडक्ट बना रहे हो, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। आप सोचो कि वॉलेट बनाने वाली ना बहुत सारी कंपनीज थी। बैंक्स ने ना, जो पेटीएम ने निकाला था वो इंडियन बैंक्स ने बहुत पहले बना लिया था, बट दे वर यू नो लाइक ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज इट कि और कैसे परफेक्ट बनाए। ठीक है, मार्केट में पहली बार जो डिजिटल वॉलेट लाने वाले जो थे, जो पब्लिकली नोन है, वो तो पेटीएम है, मगर जो और इंडियन बैंक्स है ना, दे वर ऑलरेडी ऑन टू इट, वो बना रहे थे। एक्चुअली उनका फर्स्ट वर्जन भी था, मगर उन्होंने वो सही मार्केट लूज कर दी, वो सही टाइम लूज कर दिया जिस समय वो उसको एग्जैक्टली उन्होंने वो सही वो टाइम फ्रेम मूव कर दिया। और पेटीएम ने उनका प्रोडक्ट परफेक्ट ना होते हुए भी, बहुत फॉल्ट था उनके प्रोडक्ट में, पर उन्होंने लॉन्च कर दिया एंड दे गॉट दैट एडवांटेज। उन्होंने इट्स लाइक उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च करा, लोगों से फीडबैक लिया, इम्प्रोवाइज करा और वो दे एक्सेल्ड। तो आपने भी जो भी बोला वैभव कि हमारे को सैलरी इवेंचुअली मिल जाएगी, काम अच्छा होना चाहिए, सो ये सब जो है ना, ये सब एक्चुअली में सक्सेस बताता है कि आप अपने आप को सक्सेसफुल कब बोलोगे। ठीक है, हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस फॉर यू? व्हाट इज सक्सेस टुडे एंड डज द मीनिंग ऑफ सक्सेस हैज चेंज्ड ओवर ईयर्स? यू आर एब्सोल्युटली राइट। So I would try to define this in a way that someone who is starting the career, someone who is in the midway, and someone who has crossed a decade. You know, like once being into this industry, if you have passed 10 years or a decade, then it's like a threshold, you know, like once you cross 10 years, then you're able to define okay. जब आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे होते ना, then you are much more energetic. There are a lot more other dreams there. You are more attracted or inclined towards, you know, like having a financial freedom, or you know, like to support your family, or to, you know, like, or if you have some other dreams. For example कि हर इंसान को शौक होता है, तो मुझे ये था कि मुझे गाड़ियों का बहुत शौक था कि मतलब मेरे पास, जिसके पास एक 2 व्हीलर भी बड़ी मुश्किल से अफोर्ड हो रहा था, और मुझे ये चाहिए था कि किसी तरीके से मैं एक 4 व्हीलर खरीद लूँ। कोई भी मतलब मैं आई वॉज इवन रेडी कि मुझे कोई भी मिल जाए, मतलब मेरी अपनी कोई चॉइस ही नहीं थी। ठीक है, बस अपने नाम पे। हाँ, बस अपने नाम पे होनी चाहिए। आप समझ रहे हो? तो आप समझो कि ये है एक स्टेट ऑफ माइंड। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ माइंड एंड देन वील ट्राई टू डिफाइन द हैप्पीनेस। अब आप समझो कि उस समय कोई मुझे इतना पैसा रख के दे दे, बोले जाके गाड़ी ले ले। आप समझ रहे हो? और नौकरी तो अब मिली गई थी, तो मैं हैप्पी हूँ, खुश हूँ ना कि मैं उसको कर लूँगा, मैनेज कर लूँगा। मेरे लिए आप समझ रहे हो, मेरा यूनिवर्स वही था कि मैं जाऊँ, अपना काम करूँ, मेरी नौकरी चले, और मतलब जो मुझे चाहिए ना, मतलब मुझे जो मेरी क्या बोले फ्लैशी थिंग्स जो मेरे अगल बगल की दुनिया में या मेरे दोस्तों में या मेरी जनरेशन के लोगों को मिल रहा है, वो मुझे मिल रहा है और मैं हैप्पी हो जाऊँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसी एक कैंडिडेट की कह लो, या उसी एक ऐसे एक इंसान को जब 5 साल बीत चुके हैं, 6 साल बीत चुके हैं, अब वो मार्केट में अपने आप को असेस कर रहा है ना। वो व्यक्ति अपने आप को देख रहा है कि अच्छा यार, मतलब अब तो टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है, मुझे भी अपने आप को पढ़ के और अपने आप को आगे लेके जाना पड़ेगा। अब मैंने मल्टीपल स्ट्रीम्स में ट्राई कर लिया है, हो सकता है मैं शायद पहले टेस्टर रहा हूँ, हो सकता है मैं पहले डेवलपर रहा हूँ, तो अब मैं आगे क्या करूँ कि मतलब ऐसा क्या, मैंने बोला था ना, जैसे मैंने अपने करियर में वो 8th स्टैंडर्ड के बाद वो ऐसा क्या रेट्रोस्पेक्शन में जाके मैं क्या ढूंढूं कि मैं अभी क्या कर रहा था और ऐसा क्या बदलूं कि जिससे कि मैं नेक्स्ट मूव में चला जाऊं, है ना। तो उस समय की जो हैप्पीनेस है ना, वो ये है कि मुझे मेरा बेटर करियर ऑप्शन मिल जाए, है ना। सक्सेस क्या है? सक्सेस डिफाइंस कि आप खुश रहो। मतलब आप समझो कि मेरे लिए अगर मैं सुबह उठ रहा हूँ और ऑफिस जाने से पहले, या मेरी जिस भी मैं कोई भी चीज़ कर रहा हूँ, चाहे ऑफिस जाऊँ या ना जाऊँ, अगर मैंने ये बोला है ना कि मैं आज ये 5 चीज़ें अचीव करूँगा, और ये मैं तब कह रहा हूँ कि जब मैं अपने mid-30s में आ चुका हूँ, जहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि आज के दिन में मुझे वो 5 चीज़ें करनी है। हो सकता है वो ऑफिस की चीज़ हो या मेरी पर्सनल लाइफ की चीज़ हो, उस 5 में से ना मैं खींच के 3 भी कर लूँगा ना, तो मैं सक्सेसफुल हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए मेरी मेन प्रायोरिटी मेरा काम है, ऑफिस का, जो मैं जिससे आई एम एबल टू मेक माई लिविंग, राइट। माई फैमिली इज रिलायंट ऑन मी, राइट। उसके अलावा आई हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव फ्रेंड्स। एज आई सेड, मैं 6 महीने लोगों से बात नहीं कर पाता। मेरे पास कितनी बार हुआ है कि आई ट्राई टू डायल इन अ कॉल, कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली, फ़ोन नंबर निकाला, बस फ़ोन नहीं किया, बस यही सोच के कि यार
अभी ना शायद इससे सिर्फ 2 ही मिनट बात कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास और चीज़ें हैं प्रायोरिटी में। तो अगर उस दिन उस व्यक्ति से बात हो जाती है ना, दैट डिफाइंस माई सक्सेस, कि मैं खुश हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ कि मैंने आज इससे बात कर ली। पर बहुत जगह ना सक्सेस को ना फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के साथ मैप कर दिया जाता है। मतलब मैं किसी और की क्या ही बात करूं, अपने ही घर में अगर मैं देखूं या फॉर दैट मैटर इंडियन सोसाइटी आर इन जनरल, है ना, आई थिंक फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना आज के टाइम पे सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन बन के रह गया, ठीक है। और मेंटल पीस और मेंटल हैप्पीनेस हैज़ गॉन आउट ऑफ बाउंड, राइट। एंड नॉट ओनली दिस, लोग आज के टाइम पे अपने मेंटल पीस को इतना ज़्यादा ट्रबल कर रहे हैं और इतना ज़्यादा उसको दबा देते हैं कि यार कि पैसा ही सब कुछ है। और वो गलत भी नहीं है। जहाँ हमने अभी पीछे बात करी कि कॉलेजेस की फीसेस इतनी हो गई हैं, फॉर दैट मैटर देयर इज अ सेइंग कि यू आर ओनली 1 मेडिकल बिल अवे फ्रॉम बीइंग पुअर, है ना। तो मेडिकल एक्सपेंसेस आर आउट ऑफ चार्ट्स, ठीक है, कॉलेजेस आर आउट ऑफ, स्टडी इज आउट ऑफ चार्ट्स। आजकल छोटे छोटे बच्चों के स्कूल की फीस में सुन के एकदम ऐसे हैरान हो जाता हूँ। हाँ, मेरे पूरी 4 साल की फीस अगर मैं इंजीनियरिंग इकट्ठा कर लूँ और एक 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे की फीस 1 साल के बराबर है, 4 लाख 5 लाख रुपए। तो मैं वही समझना चाहता हूँ कि हम कब बोलें कि हमारा मेंटल हैप्पीनेस और हमारा सक्सेसफुल होना मैरी कर रहा है आपस में, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल हो भी सकता है, कईयों के लिए नहीं भी हो सकता है। बट हाउ वुड यू से कि बैलेंसिंग मेंटल सेटिस्फैक्शन विद प्रोफेशनल सक्सेस, हाउ डू यू अचीव अ बैलेंस? देखो, इसमें ना एक टर्म है, उसको रीडिफाइन करते हैं एक बार। तुमने बोला सक्सेसफुल, फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना, मैं कहूँगा उसको फाइनेंशियली स्टेबल होना बोलते हैं, ठीक है। देखो, अगर मेड बी यूर अ बिजनेसमैन or even if you are an employee, whatever amount you are drawing today, at the end of the day or at the end of the month, you should know where exactly that you are going to put into, right? I like today the stats what say, मतलब मेजर बैंक्स के जो सर्वेज आते हैं ना, एनुअली रोल आउट होते हैं, हम धीरे धीरे हम यूएस के बराबर आते जा रहे हैं, जहाँ पे हमारी जो क्रेडिट पॉपुलेशन है जो कि अंडर डेप्ट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब वो धीरे धीरे हम उनको मीट करते जा रहे हैं, जहाँ पे हमारी अपनी तनख्वाह से ज़्यादा हम 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये क्रेडिट कार्ड पे जी रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, आईफोन्स। एग्जैक्टली मैं अफोर्ड कर सकूँ ना कर सकूँ, मगर मैं वो फिर भी वो ले रहा हूँ। एनीवे, हम फिर से डाइग्रेस कर गए। तो वी वर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो देखो, मेंटल पीस, एग्जैक्टली। तो आप समझो कि मेंटल पीस कम्स विद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, नॉट बिकमिंग फाइनेंशियली। बट हाउ डू यू नो, व्हेन डू यू नो कि फाइनेंशियली स्टेबल हो गए आप? हाँ, देखो, मैं इसका ना एक बहुत अच्छा की नोट बताता हूँ, ठीक है। ये मुझे भी किसी ने बताया था और मेरे ही एक रूममेट ने बताया था, ठीक है, कि मैं नौकरी करते करते कहीं बाहर जा रहा था और उसने मुझे बोला था कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ यू हैव लिक्विड सैलरी इन योर अकाउंट फॉर एटलीस्ट 6 months, ठीक है, एंड दैट एक्सक्लूड्स all your insurance amount that you are paying, health insurance that you are paying for yourself as well as for your family, then you are good. आप समझ रहे हो? मतलब it's that quite was simple. a definition then, yeah but it must have changed now. Exactly. उस समय कितना सिंपल था मेरे लिए, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मगर मेरा थॉट वही रहा है इवन आज भी। मतलब आप समझो कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट आई बिलीव इज कि इतने पैसे मेरे पास होने चाहिए कि जिसमें मैं 6 महीने, मैं अगर मान लो कभी कुछ गड़बड़ होती है तो एटलीस्ट मुझे कोई हार्ड स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इतना मैं अपने आप को अपडेटेड रखता हूँ। जब आपने बोला ना कि प्रोफेशनली सक्सेसफुल, आई इवन लाइक आई एम ट्राइंग टू कीप अप माई सेल्फ, एज आई सेड कि मेरा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मैं पढ़ ना रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि वो मैं अपने काम के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए पढ़ रहा हूँ। मार्केट में रोज़ नया टैलेंट आ रहा है, रोज़ ऐसा टैलेंट भी है जो कि मेरे टाइम का चला आ रहा है। बट वॉट डिफरेंशिएट्स बिटवीन, आई मीन अमंग देम among them with me is कि probably I might be able to outshine जो मेरी USP है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, मतलब let's not get into the details, बट उस चीज़ को मैनेज करने के लिए, उस चीज़ को रेलेवेंट रखने के लिए मैं वो पढ़ भी रहा हूँ। मतलब आप समझो कि देखो, बिना एफर्ट लगाए कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप इस बात को समझो कि ऐसा नहीं है कि आपको सडन सक्सेस मिल जाता है या सडन मेंटल पीस मिल जाता है। ओवरनाइट सक्सेस जिसको भी जितनी जल्दी मिला है वो ओवरनाइट चला भी जाता है। और ये मतलब रहा है पास में, किसी को भी उठा लो आप, जिसको जितना जल्दी मिला उतना जल्दी चला भी जाएगा। मगर अगर आपको स्टेबल
चाहिए, कुछ भी, may it be the mental peace या stable mental peace or stable financial stability or you know, like when we are talking about stability, it includes planning. As in, you need to understand what exactly that you are trying to do and what impact is it going to make what you are doing right now. Right, you need to plan your things. तो मैंने बोला ना कि अगर मुझे कुछ भी 4 पैसे मिल रहे हैं तो मुझे पता है कि मुझे वो कितना कहाँ खर्च करना है, कितना नहीं करना है, और कितने मेरे बजट में है, कितना नहीं है. देखो मैं बहुत इन्वेस्ट भी करते हो? हाँ बिल्कुल करता हूँ. और एक लेमन टर्म्स में बताऊँ, चाहे मैं कुछ भी कमा रहा हूँ, एक एग्जांपल देना, अगर मुझे 100 रुपये मिल रहे हैं ना, ट्रस्ट में मेरी नज़रों में मुझे सिर्फ 30 ही रुपये नज़र आते हैं. क्योंकि आई सी माई सेल्फ, जहाँ से मैंने 12.5 साल पहले जहाँ से मैंने अपने आप को स्टार्ट किया था, कोशिश मैं यही करता हूँ कि मैं उतना ही ग्राउंडेड रहूँ और उतने ही एक्सपेंसेस या उतनी ही चीज़ों में मैं इन्वेस्ट करूं, एज इन टर्म्स ऑफ लिवेबिलिटी, जो मैं बोलते हैं ना कि जो आपकी लाइफ लिविंग के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हो ना, मिनिमलिस्टिक बन के रहना पसंद करता हूं, ताकि मुझे पता है कि मेरे जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो ऑटोमेटिकली वाइस रहें. मतलब मैं इम्पल्सिव बाइंग या बोलते हैं ना कि कम्पिटिटिव बाइंग, उसमें नहीं रहता मैं इंटरेस्टेड. मतलब मुझे लगता है कि वो मेरा अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है. तो इससे आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन भी मिलती है. एग्जैक्टली ऑटोमेटिकली. मतलब आप समझो ना कि मुझे पता है कि मुझे दिखी 30 रुपए, मुझे मिले 100 है मगर मुझे दिखी 30 ही रहे, बाकी 70 जो है ना वो रखे हुए हैं. मतलब हो सकता है कि कभी कोई दिक्कत आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए या ना भी आए, बहुत अच्छी बात है. यू हैव टू बिल्ड वेल्थ एज वेल फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर ओल्ड एज, फॉर योर किड्स, फॉर योर फैमिली. तो इसमें एक चीज़ आपने बोली थी जहाँ पर आपने ये बोला था कि मैं अपने करियर को नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखता हूँ. ठीक है, क्या इसकी वजह से फैमिली में कभी चैलेंजेस हुए हैं? हाँ. कभी ऐसा होता है कि आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आपके लिए आपका करियर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप घर नहीं पहुँचे टाइम पे? बिकॉज व्हाट आई नो इज यू हैव अ स्मॉल किड राइट नाउ एंड कांग्रेट्स ऑन दैट. थैंक यू. सो क्योंकि उस टाइम पे एंड यू लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली राइट नाउ, राइट? करेक्ट. सो बिकॉज अब बीवी घर पे है एंड बच्चा है, तो इट इज़ मोर लाइकली कि यार बंदे का ज़्यादा होता है कि यार मेरे को घर जाना है. बट नोइंग यू आर मोर फोकस्ड ऑन कि यार मेरा काम होना ज़रूरी है और यू आर करियर फोकस्ड ज़्यादा. ठीक है, एंड दैट माइट ऑल्सो इम्पैक्ट योर पेरेंट्स, योर वाइफ एंड एवरी वन हु माइट से कि यार तुम आते नहीं हो, कभी ये फंक्शन मिस कर गए, कभी उस फंक्शन पे नहीं आए. ठीक है, सो how do you balance it? तो ऐसा कैसे होता है कि क्योंकि पेरेंट्स एंड जो जहाँ पर इमोशनल क्वोशंट आ जाता है ना, वहाँ पे लॉजिक्स गो आउट ऑफ द विंडो. ठीक है, तो उनको ये समझा पाना कि यार पैसा भी तो कमाना है, टफ है. तो हाउ डू यू मैनेज इट? राइट. सो इसमें देयर इज नो बैलेंस. यू हैव टू टेक अ स्टेप. I mean, there is always a left or a right. There is no gray for these things, particularly for this stance. And I think आपने international exposure भी आपके पास, right. वहाँ पर भी आपने work life balance देखा है लोगों का, right, है ना? वहाँ पर लोग काम और फिर घर ऐसा है. वहाँ पे work और life balance है, right. पर what not only you, what I see in India in general is people like you only. ठीक है, whatever salary यार, people like you are majority. Absolutely. So how do you balance? देखो अब अगर तो मुझे मालूम है कि मुझे इंडिया में जॉब करनी है, तो आई विल हैव टू कीप अ स्टेट ऑफ माइंड. एंड इफ आई नो दैट वेयर आई एम गोइंग टू वर्क, इवन लाइक व्हेन आई वाज वर्किंग इन अब्रॉड, पीपल हैव अ वेरी डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड. ओवर देयर इट्स एज आई सेड, इट्स अ कल्चरल ड्रिवन थिंग. वहाँ पे जनरली लोगों का ये माइंड सेट है कि दे हैव अ लाइफ आफ्टर ऑफिस, राइट? एंड फॉर अस लाइफ इज ऑफिस, राइट? क्योंकि जब भी मैं अभी नॉर्मली बात भी कर रहा था कि व्हेन यू सेड कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो वो 5 चीज़ें ऑफिस जाने से पहले, सो बेसिकली द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई कम्स अप टू माई माइंड इज कि काम करना है, ऑफिस जाना है. मतलब आप समझ रहे हो किसी एक पर आप घर वालों को ये चीज़ कैसे समझाता हूँ? तो मैं वही बता रहा हूँ दैट व्हेन इस पर्टिकुलर स्टांस के लिए ना, यू हैव टू टेक either it is black or white, there is no gray. As in you have to take a stance. तो आज की डेट में मैं और मेरी फैमिली एक पेज पे नहीं है. मतलब आप समझो कि there are differences, as in like it's not something which is bold, but it's quite implicit. Like we are not conveying, we are not exchanging words on these things. We it's know passive. It's a passive thing. Like when all of us we look into our eyes, it's quite implicit. Like they want to say it. I also want to say it,
but we are not exchanging words because they, at the end of the day, by the time that thought erupts, they are also able to understand what I am doing is also very important. Because if I don't do it, then certainly the kind of inflammation we are going through every year is certainly going to create a problem, right? So it's very important. Okay. So अब वो समझाने वाली जो बात है ना, तो मुझे पता है कि मेरी फैमिली एक पेज पे नहीं है, कहीं ना कहीं वो भी मुझसे नाराज रहते हैं और कहीं ना कहीं मुझे पता है कि तुम रह लो यार, कुछ हो नहीं सकता, मतलब so this is coming from a newly married guy. It's very tough. Yeah, it's very tough, but the good part is कि my family or preferably my wife for post couple of years she was able to understand this is how it is going to be, because we both of us, we are going together for grocery shopping, so we are able to understand from where we started and what we are paying right now and what we were paying for 5 years back has drastically changed. So she totally understands what I am doing is very, very important and is non-negotiable. So I would like to end this podcast with one last question. It's more related to the college audience, right? The students of any field, I would say. So for college students starting their journey right now, what advice would you give them? And with that, if you were given a chance, given an opportunity to tell the old Vaibhav who was starting in college to give an advice, what would it be? See, the first thing is that try to be vocal, as in whatever you are thinking and what steps that you are going to take. Try to be vocal with a similar set of people or people who've been into that or into those shoes before. It's very hard to find, as I said. मुझे भी कोई नहीं मिला था. मेरा 2-3 जगह जहाँ मैंने बोला, I took a very hard decision कि मेरे पास नौकरी थी, मैंने नौकरी छोड़ दी. और वो जो मोमेंट ऑफ जॉय आया कि मुझे नौकरी मिल गई, नहीं भी मिल सकती थी, हो सकता था मैं फेल भी हो जाऊं, मगर वो डिसीजन लेने के लिए मुझे किसी की मदद की ज़रूरत थी, पर कोई था नहीं. ऐसे में अगर आपको कोई मिलता है, और मैं कहूँगा कि वो कोई मेंटोर मिले और कोई नॉन मार्केट पर्सन हो. आज की डेट में जो मैं पर्टिकुलरली कॉलेज स्टूडेंट्स को जो मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि प्लीज़ डोंट रश आफ्टर like those lead codes or those coding websites where what you are doing is basically you are cramming algorithms just to like crack the job interview. I am not saying that it's not important. It's important. It's very very जैसे important. एग्जाम्स में हम रट्टा मारते ही थे, नंबर तो लाना ही है ना, नंबर तो नहीं कर रहा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि वो आपको कहीं ज़्यादा दूर नहीं ले जा पाएंगे. अगर इफ़ यू रियली वांट टू आउटशाइन, अब इस बात को समझो कि लीड कोड होता था ज़रूरी, बिल्कुल ज़रूरी है भी, मगर 5 साल पहले तक के लिए ना वो बहुत ज़रूरी था और आप उस पर सर्वाइव भी कर सकते हैं. मगर आज की डेट में मैं अगर आपको बोलूँ ना कि आप लीड कोड करके आ जाओ और एक प्रोडक्शनेबल एनवायरनमेंट में बैठ जाओ, आई एम रियली सॉरी यू वोंट बी एबल टू, बिकॉज द काइंड ऑफ द ट्रैफिक दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग टुडे has gone like 4x actually. Not only that, I think basic GitHub knowledge थोड़ी मिलेगी वहाँ से. हाँ, exactly. Project development का cycle थोड़ी पता चल रहा है आपको, ठीक है. दूसरा ये है कि try to get into the fundamentals. आज 10 साल बाद भी मैं, मेरे जो juniors हैं जो मेरे साथ आज भी ज्वाइन करते हैं ना, I am able to match up their level, as in कि उनके पास वो भले वो मतलब मैं 100% कह सकता कि वो मुझसे शायद बेहतर कोड लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो डे इन डे आउट यही काम कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूँ, मगर उनके पास वो एज है क्योंकि वो रोज दिन बैठ के आज भी वही कोडिंग के कोर्सेज हैं या जो मतलब उसके तैयारी कर रहे हैं वो, ठीक है. बट पॉइंट ये है कि जो फंडामेंटल्स है ना, जो मैंने बोला था कि मी बीइंग क्यूरियस कि ये ऐसा होता ही क्यों है, वो फंडामेंटल्स ना, कोई भी टेक्नोलॉजी बना लो, कोई भी आर्किटेक्चर बना लो, वो कभी नहीं बदलेगा. तो अगर आपको वो फंडामेंटल्स आते हैं ना, तो आप आने वाली टेक्नोलॉजी जो है ना, आप उसको समझ पाओगे. अगर फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, अगर आज की डेट में अभी 1-2 दिन पहले ही क्वांटम चिप लॉन्च हुई है ना, अगर आपको 8085 8086 माइक्रो प्रोसेसर नहीं पता तो आप वो भी नहीं बता पाओगे कि वो कैसे काम कर रहा है. सही. विद दिस नोट आई वांट टू एंड दिस पॉडकास्ट, बट आई थिंक जो इनसाइट्स आपने शेयर करी हैं वो अनमैचेबल हैं. एंड जो आप बोलते हो ना कि यार आपके पास कोई था नहीं बताने वाला, हमारे पॉडकास्ट का एम ही वो है कि हम बेसिकली इसी पॉडकास्ट के थ्रू नॉट ओनली टेक प्रोफेशनल्स बट इन जनरल स्टूडेंट्स को या इवन जो अभी टेक फील्ड में काम कर रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस के साथ हम उनको ये बता पाएँ कि व्हाट इज़ एक्चुअली नॉर्मल.
क्योंकि sometimes people go in self doubt. No, you're absolutely right. And I think you're doing a tremendous job, because the reason is because what I've seen is generally people, the influencers nowadays, what the influencers or YouTubers, what they are doing is where they are trying to create content which is actually, like asking them to take a sheep walk, either to take a course or do this or follow these number of steps. As in you don't have to analyze something. Someone has already analyzed things for you, and there are bullet notes people simply have to follow. But the kind of discussion that we are trying to do over here, it's totally up to your viewers how they analyze about it, out of the experience the person that they are trying to interview. Yeah. So all the very best. I guess Thank it's you, Gaurav. Thank you, certainly Vaibhav. going to be a great series for you. Yeah, thank you so much.